Hello students. So today we'll discuss the last topic of unit number 4 of banking insurance semester 4. And the last topic is Camel's rating. Please note that in previous class we discussed about the performance evaluation of banks. See, the performance evaluation of banks, whatever ratio we have discussed, like interest margin, interest spread, investment, return on investment, return on equity and all. So many of these ratios are different than that of other companies like manufacturing or other services. The reason being the asset of banks are different than that of other companies. So these ratios like interest spread, interest margin, these are applicable only for banks or financial companies. In today's topic, that is Camel's rating, is one another tool to evaluate the performance of banks. This part we are going to discuss in separate topic. Reason being, again, this method is also a comparative method. Means that through Camel's rating, banks are compared. The performance of banks are compared. Whether a particular bank is better than other bank or not. So let's discuss. The acronym of Camels stands for C for capital adequacy, A for asset quality. This is not duality, this is quality. M for management, E for earnings, L for liquidity, S and S for sensitivity to the market risk. So capital adequacy, C, capital adequacy, A, that is asset quality, then M is management, E stands for earning, that is E stands for earning, L for liquidity, and S for sensitivity. S for sensitivity. So this is Camel's rating. In this method, on these parameters, the 6 parameters, the banks are rated and a total rating or a scale is created, and on the basis of that scale or rating the banks are compared. So let's discuss what are these components. First one is capital adequacy. Capital adequacy is evaluated in relation to volume of risk assets. See, volume of risk assets, this part we have discussed in CAR, that is capital adequacy ratio. So the capital adequacy ratio is used here for capital adequacy. So where in capital adequacy ratio we compared the capital 1 plus capital 2 with respect to risk weighted asset. That's why it is evaluated in relation to volume of risky asset a particular bank carries. So if a bank is having more of that asset which have high risk, their capital adequacy ratio or their capital adequacy will be lower. The volume of marginal and inferior quality assets, the bank's growth experience, plan, prospects, strength of management, all these parameters are important to assess the risk of asset. Consideration is also given to an institution's capital ratios relative to peer group, its earning retention, its dividend policies, and its access to capital market or other appropriate source of financial assistance. So when we are analyzing the capital adequacy, it's a very broad
broad parameter to evaluate the performance of bank. See, it includes analyzing the asset quality with respect to its risk-weighted criteria, as well as it also includes the comparison with the peer group in terms of earning retention, in terms of banks' dividend policies, banks' access or banks' confidence to acquire fund from the market, that is the sources of fund to the market, from the market to the bank. So that is capital adequacy. तो अगर हमें कैपिटल एडिक्वेसी पैरामीटर के बेसिस पे बैंक्स को रेट करना है तो हमें उनके CAR को तो देखना है, और बाकी और भी क्वालिटेटिव पैरामीटर कि उनका ग्रोथ प्लान क्या है, ग्रोथ एक्सपीरियंस क्या है, मैनेजमेंट का स्ट्रेंथ क्या है, उनकी रिटेंशन, अर्निंग रिटेंशन कैसी है जो बैलेंस शीट पे दिखेगा, डिविडेंड पॉलिसी किस तरीके से है, और वो किस तरीके से मार्केट से फंड को एक्सेस कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं. ये सारे पैरामीटर डिसाइड करेंगे किसी भी बैंक के कैपिटल एडिक्वेसी को. नेक्स्ट इज एसेट क्वालिटी. तो एक तो हो गया हमारा कैपिटल एडिक्वेसी के बेसिस पे. इसके बेसिस पे हम बैंक्स को रेट कर सकते हैं. सपोज 5 बैंक लिया, एक्सिस बैंक है, SBI बैंक है, ICICI बैंक है या यूको बैंक है, इस तरीके से 5 बैंक लिया, और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बेसिस पे या कैपिटल एडिक्वेसी के बेसिस पे वी विल कंपेयर किस पर्टिकुलर बैंक को कितना रेट किया जाए, 1 2 3 4 5 सो ऑन. देन एसेट क्वालिटी. Asset quality is evaluated by the level, distribution, and severity of adversely classified assets. The level and distribution of non-accrual and the reduced rate assets, the adequacy of allowance for loan losses, and management's demonstration ability to administer and collect problem credits. In addition, examiners evaluate the volume of concentration of credits, trends in asset quality, volume of out of territory loans, level and severity of other real estate held, and the bank's underwriting standards. तो यहां पे जब हम एसेट क्वालिटी की बात करते हैं तो बैंक के एसेट क्वालिटी की बात हो रही है, और बैंक्स के जो एसेट होते हैं वो लोन होते हैं. उन बैंक्स में डिपॉजिट आता है फ्रॉम अकाउंट होल्डर्स विच इज बैंक्स लायबिलिटी, और फिर यही बैंक CRR और SLR को माइनस करके जो बचता है उसको लोन फॉर्म में देते हैं. तो जब हम एसेट की क्वालिटी को एनालाइज करना चाहते हैं, बेसिकली वी आर एनालाइजिंग द क्वालिटी ऑफ लोन गिवन बाय द बैंक. जैसे कि विजय माल्या को जो लोन दिया गया है आज की सिचुएशन में, वो एसेट सबसे पुअर एसेट कहलाए, या वो एसेट जो नॉन परफॉर्मिंग है वो पुअर एसेट होंगे. वहीं पे जो टाइम टू टाइम प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट रिटर्न मिल रहा है, उस एसेट की क्वालिटी अच्छी मानी जाएगी. तो जब एसेट की क्वालिटी को एनालाइज करना होता है तो बैंक्स ने जहां जहां लोन दिया है, प्रायोरिटी सेक्टर में या सेक्टर स्पेसिफिक लोन दिया है, या इंडिविजुअल लोन है, हाउस लोन है, एजुकेशन लोन है, व्हीकल लोन है, जो भी टाइप का लोन है, हर एक लोन का एनालिसिस, ये लोन से, पर्टिकुलर लोन से उसकी रिकवरी कैसे हो रही है, कितना पार्ट एनपीए में जा रहा है, कितना पार्ट डेट में कन्वर्ट हो रहा है, लोन लॉसेस में कन्वर्ट हो रहा है. सो ऑल ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, टेरिटरी, किस लोकेशन में कितना दिया गया है, किस लेवल पे दिया गया है. तो ये सारे पैरामीटर डिसाइड करते हैं कि एसेट की क्वालिटी कैसी है, और इसके बेसिस पे हम बैंक्स को वापस रेट करेंगे कि ये पर्टिकुलर बैंक की एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है, दूसरे की कंपैरेटिवली पुअर है, तीसरे की और. नाउ इस सिचुएशन में अगर देखा जाए, लॉकडाउन सिचुएशन में देखा जाए, तो हर एक बैंक का एसेट क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे डिफॉल्ट हो रहे होंगे, बहुत सारे मॉरेटोरियम पीरियड में चले गए हैं,
तो जो रिकवरी है वो रिड्यूस हो गई। तो इस सिचुएशन में भी हम, क्योंकि कैमल्स रेटिंग कंपेयर करता है तो कंपैरिजन करना है, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी कुछ बैंक्स ऐसे होंगे जिसकी रिकवरी अच्छी होगी, जिसके लोन की क्वालिटी या एसेट की क्वालिटी अच्छी होगी, इसके बेसिस पे रेटिंग की जाएगी, 1 है, 2 है, 3 है। सो नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। यहां पे देखिए जब मैनेजमेंट की बात आती है तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक पैरामीटर हो सकता है टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ बैंक्स। लॉन्ग टर्म गोल क्या है मैनेजमेंट का, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, मिड टर्म में गोल क्या है, किस तरीके से मैनेजमेंट का एचआर पॉलिसी है, क्या है मैनेजमेंट का ग्रोथ पॉलिसी, अप्रेजल सिस्टम कैसा है। तो जो ह्यूमन रिसोर्स का हम लोग पढ़ते हैं, एचआर का जो भी पैरामीटर पढ़ते हैं, उसके अलावा मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी कैसी है, ये सारे पैरामीटर मैनेजमेंट को डिसाइड करेंगे। इसके बेसिस पे हम रेट करने जाएंगे। जैसे कि मैनेजमेंट इज इवेल्युएटेड अगेंस्ट वर्चुअली ऑल फैक्टर्स कंसिडर्ड नेसेसरी टू ऑपरेट बैंक विद इन एक्सेप्टेड बैंकिंग प्रैक्टिसेस। सी, लोन रिकवरी इज इंपॉर्टेंट, पर क्या लोन रिकवरी जबरदस्ती हो रहा है? सी, किसी की लोन, किसी पर्सन ने लोन ले लिया है, अब उसकी पेइंग कैपेबिलिटी ही नहीं रही, तो हमारे पास, बैंक के पास कोई राइट नहीं है कि उसके एसेट को बेच सके अनटिल वो पर्टिकुलर एसेट मॉर्गेज्ड हो। मतलब जो लोन लिया है, जिस पर्सन ने लोन लिया है, उसने उस लोन के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ कोलैटरल या मॉर्गेज रखा होगा। तो बैंक के जो एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस है, सी, बैंक को तो रिकवरी करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक जो है अपने मन मर्जी से उस पर्टिकुलर पर्सन के कोई भी एसेट को बेच सकता है, ऐसा उसके पास पावर नहीं है। सो जो भी एक्सेप्टेड बैंकिंग प्रैक्टिसेस है, उसके अंदर कैसे मैनेजमेंट परफॉर्म कर रही है, बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है, वो हमें इवेल्युएट करना है, एंड सेफ एंड साउंड मैनर। Thus, management is evaluated in relation to technical competence, leadership, administrative ability, compliance with banking regulations and strategies, adequacy of compliance with internal policy control, and whether the board has a plan covering management successions. The assessment of management also takes into account the quality of internal controls, operating procedures, all lending, investment and other operating policies. Finally, जो एग्जामिनर हैं, जैसे हम लोग हैं, जो हम बैंक को इवेल्युएट कर रहे हैं, सो एग्जामिनर रिव्यू एंड एसेस द कंपोजिशन, एक्सपीरियंस लेवल, एबिलिटीज एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स इन डिसीजन मेकिंग। तो जब हमें इवेल्युएट करना है तो हमें इन सभी चीजों को रिव्यू करना पड़ेगा, इवेल्युएट करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट पैरामीटर की रेटिंग की जाएगी। नेक्स्ट है अर्निंग। अर्निंग, ऑब्वियसली अर्निंग इज रिलेटेड टू रिकवरी, क्योंकि बैंक की जो अर्निंग है दैट इज इंटरेस्ट, लोन ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, आर इवेल्युएटेड विद रिस्पेक्ट टू देयर एबिलिटी टू कवर losses, is situation very important, and provide adequate capital protection, trends, peer group comparison, the quality and composition of net income, and the degree of reliance on interest sensitive funds. Consideration is also given to banks' dividend payout ratio, the rate of growth of retained earnings, and the adequacy of bank capital. The adequacy of provision to the allowance for loan losses and the extent to which extraordinary items, securities, transactions, tax effects contribute to net income are also assessed. बहुत सिंपल शब्दों में, बैंक की जो अर्निंग है, इंटरेस्ट जो अर्निंग है, उसका इवैल्यूएशन करना है कि कितनी अर्निंग आ रही है और उस अर्निंग का
बैंक किस तरीके से यूटिलाइज कर रही है। जैसे यहां पे बताया गया है, टू कवर लॉसेस, लॉस को कवर करने के लिए, या डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसा, उसका रिटर्न अर्निंग कैसा, उसका ग्रोथ पॉलिसी कैसा है, ये सारे पैरामीटर एनालाइज किए जाएंगे टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ बैंक ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग्स। अर्निंग, बैंक की अर्निंग कितनी है, वो अर्निंग किस तरीके से वो उसको यूज कर रहा है, उसका इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कैसा है, डिविडेंड पॉलिसी कैसा है, रिटेन अर्निंग कैसी है, उसका रेट ऑफ ग्रोथ कैसा है, ग्रोथ प्लान क्या है, ये सारे पैरामीटर इवेल्युएट किए जाएंगे। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी। ऑफ कोर्स लिक्विडिटी की जब यहां पे टर्म आएगी तो हम एसएलआर की बात नहीं कर रहे, यहां पे लिक्विडिटी का मतलब है कि जो लोन दिया गया है। जब हम लिक्विडिटी की बात करते हैं तो इसमें ये इवेल्युएट करना होता है, ये देखना होता है कि बैंक के पास रेडली अवेलेबल कैश कितना है। एसएलआर की बात नहीं कर, उसके अलावा रेडली अवेलेबल कैश कितना है, क्योंकि एसएलआर तो सभी के लिए सेम रहेगा, वो तो रेट सभी के लिए सेम है। हम रेडली अवेलेबल कैश की बात कर रहे हैं, वो कैश जो, या फिर वो एसेट जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो सके, जैसे कि शेयर हो गया, गोल्ड हो गया, बुलियन हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया। तो ये लिक्विडिटी बताने जा रहे हैं। इसके अलावा यूज ऑफ ब्रोकर्ड डिपॉजिट, ब्रोकर की डिपॉजिट, जो डिपॉजिट है उसका यूज किस तरीके से, एक्सेस टू मनी मार्केट, मनी मार्केट का एक्सेस कितना, कैसा है, कितना अच्छा है। मनी मार्केट जहां पे हम शॉर्ट टर्म लोन को देते या लेते हैं, जैसे कॉल मनी हो गया, नोटिस मनी हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, कमर्शियल बिल हो गया, इन सब की बात हो रही है। तो मनी मार्केट का एक्सेस कैसा है, एंड अदर रेडी सोर्स ऑफ फंड, तो यहां पे लोन किस तरीके से, बैंक किस तरीके से मार्केट से लोन ले सके, बैंक लोन ले सके, तो वो उसकी लिक्विडिटी बताएगा। हाउ फास्ट लिक्विडिटी कैन बी अरेंज्ड, हाउ फास्ट कैश कैन बी अरेंज्ड, ये बैंक की लिक्विडिटी बताती है। सो द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, ALM, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, कि बैंक के पास एसेट कितना है, उसकी लायबिलिटी कैसी है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कैसा है, और इसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, is considered, as well as the adequacy of and the compliance with established liquidity policies. The nature, volume, and anticipated use of credit commitments are also factors that wait for analyzing the liquidity. Simple term में बैंक के पास लिक्विडिटी कितना है, कितना फास्ट वो लिक्विडिटी कन्वर्ट कर सकता है, जो भी उसके पास एसेट है कितना फास्ट उसको कन्वर्ट कर सकता है, इसके अलावा उसका एक्सेस मनी मार्केट में कितना अच्छा है। तो ये बैंक की लिक्विडिटी को इवेल्युएट करेंगे। लास्ट है द सेंसिटिविटी टू द मार्केट रिस्क। जब यहां पे सेंसिटिविटी की बात करते हैं, दैट इज नथिंग बट बीटा, बीटा की हम बात करें, that is to compare the risk of the bank with respect to market. Maybe market को आप सेंसेक्स 30 के साथ कंपेयर कर सकते हैं, या निफ्टी 50 के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जो सेंसिटिविटी है बीटा, इस बैंक की बीटा की वैल्यू कितनी है, क्या वो 1 से ज्यादा है या 1 से कम है, और उसके बेसिस पे बैंक किस तरीके से रिटर्न दे रही है, ये उसकी सेंसिटिविटी बताएगा। सो द कंपोनेंट रिफ्लेक्ट्स द डिग्री टू विच चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, कमोडिटी प्राइसेस, equity prices can adversely affect a financial institution's earnings or economic capital. When evaluating this component, consideration should be given to management's ability to identify, measure, monitor, and control market risk, the institution's size, the nature and complexity of its activities,
and the adequacy of its capital earnings in relation to level of market risk exposure. तो इसमें हम लोग जो मार्केट की सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं, that includes diversified and undiversified risk, that includes systematic and unsystematic risk, that includes all those risks the bank is exposed with the market. It also includes those risks which are inherent of the bank. तो ये सारे पैरामीटर एक साथ क्लब होके हमें बैंक के परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में हेल्प करेगा. और कौन करेगा? बीटा, सेंसिटिविटी विद रिस्पेक्ट टू मार्केट. तो हम हर एक बैंक की सेंसिटिविटी निकालेंगे, बीटा की वैल्यू निकालेंगे, वेरिएंस विद रिस्पेक्ट टू कोवेरिएंस विद रिस्पेक्ट टू मार्केट, वेरिएंस ऑफ द बैंक के अर्निंग या शेयर प्राइस के, वेरिएंस विद रिस्पेक्ट टू कोवेरिएंस ऑफ बैंक विद रिस्पेक्ट टू मार्केट. तो इसके थ्रू में बीटा की वैल्यू मिलेगी. और इस बीटा की वैल्यू, ये बीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमें डायरेक्टली बताएगा कि विद रिस्पेक्ट टू मार्केट बैंक का एक्सपोजर रिस्क के साथ, मार्केट रिस्क के साथ, या बैंक का खुद का जो रिस्क है वो किस तरीके से. तो ये 6 पैरामीटर है. और इन 6 पैरामीटर में हम हर एक बैंक को रेटिंग देंगे. और फिर रेटिंग देने के बाद इन 6 पैरामीटर्स की एक एवरेज रेटिंग निकाली जाएगी. क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि जैसे मैंने 5 बैंक लिया, तो एक बैंक की सेंसिटिविटी बहुत अच्छी है, किसी की लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, किसी का कैपिटल एडिक्वेसी अच्छा है, किसी का मैनेजमेंट अच्छा है. तो हर एक केस में अलग अलग रेटिंग मिलेगी हर एक बैंक को. तो जब हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज रेटिंग जो होगा वो सारे 6 पैरामीटर, कैमल्स के सारे पैरामीटर्स का एवरेज रैंकिंग मिलेगी हर एक बैंक की. और वो एवरेज रैंकिंग हमें बताएगा कि जो हमने बैंक्स को सेलेक्ट किया है फॉर कंपैरिजन पर्पस, उसमें कौन सा पर्टिकुलर बैंक बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा बैंक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है. तो दिस इज व्हाट कैमल्स रेटिंग इज. इसका जो रेंज है 1 to 5 में वेरी करता है. 1 to 5 के स्केल में इसको रखा जाता है और 1 to 5 की वैल्यू को ये डिफाइन करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट कैमल्स रेटिंग. यहां पे आपका यूनिट नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है. एंड इन नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड विल मूव टू यूनिट नंबर 5. कीप स्टडिंग, कीप आस्किंग क्वेश्चन, प्रोवाइड योर फीडबैक. थैंक यू.